We have an inductor like this connected to a capacitor and a resistance in series. Okay. And this circuit is connected across an AC source. So the circuit is something like this. Okay. Now, if you see the potential drop across this entire circuit, that you can write as E equals to VL plus VC plus VR, right? Where E is the EMF of the source, instantaneous voltage of the source. And VL, VC, VR, they are the voltage drop across the three क्या कहते हैं components. ठीक है? ठीक है तो? Yes, sir. Okay. So we can write this as VL can be written as LdI by dt. VC can be written as Q by C. Integral I dt by C plus VR can be written as I into R. ठीक है? So if you take the source as current as I naught into sin omega t, substituting this we'll get the answer. ठीक है? So basically you will get E finally as E naught into sin of omega t plus phi. ठीक है? So this is the same form which we got in the LR circuit also. Sin of omega t plus phi into E naught. ठीक है? So ये भी हमारे AC होगा. Alternating. सर नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा है। ओ दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा बता दे. एक मिनट. ठीक है? अभी दिख रहा है? Yes, sir. So E naught into sin of omega t plus phi. ऐसे कुछ होगा. So now this is the final form which you get. ठीक है? Now you have to see what are the values of E naught and phi. तो अगर ये पता चल गया तो अपने सर्किट को सॉल्व कर लिया पूरा. So if you solve, you'll get the value of E naught. This will be equal to I naught into Z. ठीक है? So while you solve this, if you substitute current as I naught into sin omega t, so this will be L omega into cos of omega t, right? L I naught omega into cos of omega t. यहाँ पे आएगा तो I naught by omega into C into minus cos omega t, right? So this Z finally comes out to be ये हमारा आता है equal to square root of R square plus XL minus XC square. ठीक है? ये बहुत important है. So the impedance for this LCR circuit comes out to be square root of R square plus XL minus XC square. ठीक है? ऐसा है. So we got the E naught peak value पता चल गया आपको, and phi also you can find. So phi you'll get, this will get as XL minus XC by R. ठीक है? तो ऐसे कुछ दिखेगा ना. आप बोलेंगे सर ये सब कहाँ से आ रहा है, यू नो, यहाँ पे आर लिखा है, ये सब एक फॉर्मूला कहाँ से आ गया अचानक से? किसी को लग रहा है इससे? ये सोइशी जेड कहाँ से आ गया, फाइव कहाँ से आ गया ऐसे? So E naught will be I naught into Z
ठीक है, एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट दिस वैल्यू। सो मे बी शायद आपके बोर्ड एग्जाम में उसका डेरिवेशन आ सकता है, तो एक बार देख लेना। कुछ नहीं, बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है का वैल्यू को, एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द आंसर। दैट ओनली यू हैव टू टेक a into cos phi, a into sin phi, देन a का वैल्यू निकालना है, phi का निकालना है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इसी के लिए आपका। ठीक है, now this value of phi can take, it can be positive also, negative also, and zero also. So phi will be positive when we can say that xl will be greater than xc. That time tan phi will be positive, right? This will be 0 when xl equals to xc, and it will be negative when xl is less than xc. हो गया ऐसा? ठीक है, so ये हमारा phi हो गया, this is z, this is phi. Okay, so for this circuit we have found out the impedance also, and we have found out the phase angle phi. ठीक है, तो इतना ही है बस इसमें। सो ये बचा था एलसीआर सर्किट हमारा। ओके, तो इसको लिख लो थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। अरे आप लोग को थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए जी। ठीक है, ठीक है, लिख लिया सबने? ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीडेंस एंड tan phi, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया सब ना? अरे क्लास में है कि नहीं? अब लोग को वीडियो ऑन रखिए ना, तुमको पता चल जाएगा, पूछना भी नहीं पड़ेगा। क्या डर लगता है क्या ऑन रखने से? ओके, सो ये हमारा एलसीआर सर्किट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। ना इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन आता है विच इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, सो
जो हमारा इम्पीडेंस का फॉर्मूला आया था, z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL minus XC whole square. This is the formula for impedance, right? So the minimum value of impedance कितना होगा? What will the minimum value of Z? कोई बता सकता है? मैथमेटिकली बता सकते हैं आप लोग? इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? दो स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं आप भाई, बताइए। आप लोग सीखे होगे ना? इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ये भी रियल नंबर्स है। ये सर, ये आयुषी बताइए। 0. 0 होगा ना, राइट? So here also you're adding two squares. So resistance is constant. It will be some constant value. तो इसको तो change नहीं कर सकते. But by changing the frequency of the circuit, we can change XL and XC. Right? हमारा XL होता है, this is omega into L, and this will be minus 1 by omega into C. ऐसे होगा, right? So now by changing the frequency, you can change both of these values. ठीक है? And ये पूरे टर्म का minimum value कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, right? ठीक है? So when Z is minimum, जब minimum condition आता है, so that time these two have to be equal. So omega L will be equals to 1 by omega C. So you get omega equals to 1 by square root of LC. ठीक है? So this is called a condition for resonance. इसको resonance बोलते हैं. So what happens? The impedance of the circuit becomes very less. So due to this, more current will flow through the circuit. ठीक है? तो ये resonance condition होता है, ये हमने देखा था. ठीक है? So ये क्या मेरा condition for resonance. ठीक ना, इसमें दो प्रकार का रेजोनेंस होता है. वन इज सीरीज. ठीक है? सो इन दिस विल गेट द कर्व लाइक दिस, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट. इसका कुछ ऐसा होगा. So at a particular frequency, the resonance frequency, the current in the circuit becomes maximum. ठीक है? Because impedance is minimum, the current becomes maximum. ठीक है? So this is for the series. And similarly for the case of parallel, सीरीज मतलब ये वाला था जो भी मैंने बनाया था. अब पैरेलल में क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ आता है. दिस इज लिटिल इंटरेस्टिंग. कोई बता सकता है कैसे करेंगे इसका? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा. वो फिर वो कलर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा. ठीक है? ये ब्लू कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर है. ठीक है? सो दिस ब्लू कलर विल बी एक्सेल. ठीक है? एक्सेल हमारा ओमेगा एल होता है. सो ब्लू कलर कैसे हो गया? देन दिस येलो कलर विल बी एक्सी, 1 by ओमेगा सी होता है. ठीक है?
एंड ऑरेंज कलर का तो रेजिस्टेंस है, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो एक्सएल इक्वल टू एक्स यहाँ पे कहीं आएगा मेरा। ठीक है, सो दे द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन पैरेलल। ओके, सीरीज में ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, पैरेलल में ऐसा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया फिर। ओके, तो इसके थोड़ा सा बना लीजिए फटक से। इस इतना ही है इस रेजोनेंस में। लिख लिया। हो गया ना रिया? ठीक है, लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। ओके, आयुषी का हो गया, ये आपका भी हो गया। ठीक है, अच्छा। सो क्या मेरा सीरीज एंड पैरेलल सेकंड। तो जो पैरेलल का मैंने कंडीशन बताया आपको, इसका भी कुछ सर्किट होगा ऑब्वियसली। सो आप खुद से ट्राई कर सकते हो इसका। आई जस्ट टेल यू कि सर्किट कैसा है, यू कैन ट्राई टू डिराइव द वैल्यूज। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? सीधा इंडक्टर कैपेसिटेंस से हमारा पैरेलल सर्किट हो गया। ठीक है, एंड हाँ, एंड आपको दिया है कि बैटरी का जो ईएमएफ है इक्वल्स टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू डिराइव द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, एंड करंट डिराइव करेंगे तो वो ग्राफ बना सकते हैं जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, ऐसे। तो ये आप खुद से कर लेना, ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो। इजी है ना एसी? डर लग रहा है किसी को एसी से? यस, इजी है तो।
ओके, तो इसको मिटा देते हैं फिर। ठीक है, सीधे पैरेलल सर्किट, इसका आप आराम से ट्राई कर सकते हो। यू कैन लीव हाफ अ पेज एंड इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो फाइनली हम लोग वी हैव कम टू दैट पॉइंट इन एसी सर्किट्स इन विच थोड़ा तो हमको पता चल रहा है कि एसी में होता क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। सो एसी वोल्टेज होता है, एसी करंट होता है। ठीक है, एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्किट्स व्हिच यू सॉ, LR सर्किट्स, RC सर्किट्स, LCR सर्किट्स, जो एसी हमने अभी देखा है। ठीक है, एंड वी गॉट इंट्रोड्यूस टू इम्पिडेंस। इम्पिडेंस हमारा काम करता है रेजिस्टेंस की तरह थोड़ा बहुत, एंड उसमें बस एक चीज़ की थोड़ा फेज आ जाता है, फाई tan फाई हम लोग देखते हैं, XL माइनस XC बाय R, दिस थिंग्स वी सॉ। ठीक है, ऐसा है। सो अभी हम लोग एसी को थोड़ा इजी बनाएंगे, जिससे बच्चे को थोड़ा कम डर लगेगा। ठीक है, पता है एसी से बच्चों को बहुत डर लगता है, आई हैव सीन, देयर इज नथिंग मच टू फियर एक्चुअली। So let me just teach this simple concept, phasor diagram। ठीक है, so phasor diagram is a graphical representation of current and EMF। ठीक है, तो जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है एंड जो सर्किट के क्रॉस EMF है, उसका अगर आप ग्राफिकली दिखाना चाहेंगे तो फेजर कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, सो अच्छा, आप लोग को याद है क्या वो दिस, क्या था वो, फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, याद है कुछ ऐसा? फाइव बाई टू। हाँ, तो प्योरली इंडक्टिव में क्या होता है? हाँ, पाई बाय टू ही है। कौन किसको लीड करता है, याद है? सर वो वोल्टेज ओवर करंट। वोल्टेज करंट को लीड करता है क्या? प्योरली कैपेसिटिव में उल्टा होता है रे। उल्टा। हाँ, तो इन दैट करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय टू और EMF लैग्स करंट बाय पाई बाय टू। ठीक है, इसे हम देखे थे, तो उसी को हम ग्राफिकली दिखाएंगे जिससे बहुत आसान हो जाएगा जीवन आपका। तो एक बार समझ लो इसको, फिर एसी आपके पूरे हाथ में रहेगा। ठीक है, सो इफ यू टेक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, so in this the current and EMF they are in same phase, right? So इसको आपको जैसे दिखा सकता है, सिर्फ द phase of current is towards the right, so the phase of EMF will also be towards the right। हो गया ऐसा, सेम डायरेक्शन है ना बेसिकली। ठीक है, सो ये हो गया प्योरली रेजिस्टिव। Now if it is a purely inductive circuit, so in this what happens, अगर करंट हमारा ऐसे है ये फेज में, so then what happens, this EMF leads current by pi by 2, हमको पता है ऐसा, right? So we can represent that EMF leading current by pi by 2 like this। This is the EMF and this is 90 degree। ठीक है, so current का डायरेक्शन ये है
एंड ईएमएफ इज लीडिंग करंट बाय पाई बाय 2, मतलब करंट के पहले वो। यस, समझ में आया अविंशु रिया आयुषी? Yes, sir. ओके, सो प्योरली इंडक्टिव में ऐसा होता है, करंट ईएमएफ लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। चलो अभी देख लेते प्योरली कैपेसिटिव सर्किट अगर है तो कैसे होगा। सो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, एंड यू कैन राइट ईएमएफ विल बी लाइक दिस। In this direction. So here the current is leading EMF by pi by 2, right? या फिर EMF is lagging current by pi by 2, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। सो ये गया 3, यहाँ तक तो सिंपल है ना। इसके बाद हमारा इसका असली एप्लीकेशन आएगा। Now if you have LR circuit, इसको कैसे करेंगे? So current is like this, ठीक है। Now there will be potential drop across inductor also and resistor also, right? इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस होगा कि नहीं रिया? होगा तो। सो Yes, दोनों sir. को दिखाना पड़ेगा, ये हमारा ई आर होगा, दिस विल बी ई एल, इसलिए इसे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे हम? सो ई एल विल बी लाइक दिस, सो ई एम एफ अक्रॉस इंडक्टर विल बी लीडिंग करंट बाय पाई बाय 2, तो उसको तो ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी ई एम एफ ड्रॉप होगा, सो वो ये डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, ऐसे होगा। सो अभी को क्या निकलना है, यू हैव टू फाइंड आउट इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपली वेक्टर की तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो वन वेक्टर इज टुवर्ड्स द राइट, अनदर इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, बोथ आर एट 90 डिग्रीज। सो अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, सो दिस एंगल इज फाई, ठीक है। यानी हमारा एक्चुअली ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ठीक है। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट, आप लोग निकाल सर सकते हैं। हाँ, यू कैन फाइंड आउट tan phi, दिस विल बी EL by ER, अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। एंड आप V का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर, ठीक है। होगा तो ऐसे। सो नाउ यू कैन राइट EL, इसको आप लिख सकते हैं I नॉट इंटू एक्सएल, IRMS इंटू एक्सएल लिख सकते हैं, या I पीक इंटू एक्सएल, एंड दिस विल बी I नॉट इंटू R, तो कैंसिल हो जाएगा। सो tan phi इक्वल टू XL by R, कुछ जानना पहचान ऐसे लग रहा है? ये मैंने फर्स्ट क्लास में डिराइव किया था LR सर्किट के लिए, तो जो मंडे को हुआ था उसमें। सो tan phi केम एज XL by R, राइट?
ठीक है, and similarly you can substitute here, ये I naught into R होगा या I naught into XL होगा, so this will be I naught into square root of R square plus XL square, and ये क्या होता है हमारा, this will be impedance for the circuit, so हो जाएगा हमारा I naught into Z। ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्लियर আছে तो? Yes, sir. ये समीक्षु Yes. क्लियर আছে? ओके, तो जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था बहुत बड़ा सा, उसको हमने एकदम 2-3 लाइन में कर दिया एक डायग्राम बना के। ठीक है, जनरली एसी को ऐसे सॉल्व करना चाहिए यूजिंग फेजर डायग्राम। ठीक है, इससे आपका जीवन आसान हो जाएगा। ओके, और कौन सा बचा? एलआर हो गया, चलो एलआर से भी कर लेते हैं, कोई जगह है क्या? ठीक, ऊपर का मिटा देते थोड़ा सा। फिफ्थ टाइप सर्किट दिख रहा है ना? हाँ, फिफ्थ सर्किट विल बी एलसीआर। ओके, so in this you will have current like this towards the right, EL will be pointing upwards, then drop across resistance will be pointing right, and drop across capacitor will be pointing downwards। ठीक है, ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, राइट? तो आप इफेक्टिव ईएमएफ निकाल सकते हैं इसका। सो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इतना कुछ आ जाएगा मान लो, दिस विल बी EL माइनस ER, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एंड तो ER तो ये है हमारा, so combining both of them we'll get effective EMF, this angle will be phi। ठीक है, तब कैलकुलेट कर सकते हैं सब कुछ इसके लिए। tan phi क्या होगा? दिस विल बी EL माइनस EC बाय R, EC होगा यार, दिस विल बी XL माइनस XC बाय R, ऐसे लिख सकते हैं। Still we can find out E also, E will be square root of ER square plus EL minus EC cos square, and substituting I naught into R, I naught into XL, तो आपको Z का वैल्यू आ जाएगा इम्पीडेंस, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे तो समझे सबको, क्लियर है? तो इसको भी फटक से।
क्या कर दिया फर्स्ट स्टेप या ठीक करो करो सर बोलिए हमेशा सर वो प्योर एल और प्योर सी के साथ वो एल आर का और एल सी आर का क्या डिफरेंस है, एक बार बोल सकते हैं मतलब फेजर डायग्राम में? डिफरेंस क्या है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में सिर्फ इंडक्टर होता है ना तो सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंडक्टर के अक्रॉस तो ये लीड करेगा करंट को पाई बाई 2 से ठीक है अब एलआर में क्या होता है रेजिस्टेंस भी रहता है इंडक्टर दोनों रहता है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ईएल विल बी अपवर्ड्स ईआर करंट के डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा इफेक्टिव ईएमएफ निकालने के लिए ये डिफरेंस सर है बस वो फ्रेज मतलब एल आर और एल सी आर का जो आई है फ्रेजर डायग्राम में, वो क्या मतलब थ्रू आर वाला आई है? हाँ वही ठीक है यस सर। डन हो गया sir. हो गया अच्छा ठीक है so these are phasor diagrams for all the different type of circuits इसमें मैंने आरसी कवर नहीं किया आप आरसी खुद से भी कर सकते हैं ठीक है आप ऐड कर देना बाद में सो एलसीआई पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं सो इन द एलसीआई सर्किट the value of phi can be it can be positive it can be 0 also and can be negative also ठीक है so इस केस में phi पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है ये केस है बताइए Sir, फिर से repeat कीजिए. phi is it positive or negative 0 in this case Positive. positive okay so phi पॉजिटिव का तो डायग्राम ये हो गया then for phi equal to 0 उसका फेजर डायग्राम कैसे आएगा तो बता सकते हैं सी आर तो ये डायरेक्शन में होगा ठीक है ई एल एन इसी का मैग्नीट्यूड कंपेयर करना होगा आपको सो ई एल इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स इसी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स दोनों इक्वल होना चाहिए so this both will cancel each other out so only EMF will be across the resistance तो इसमें phi 0 हो जाएगा ठीक है तो phi 0 का कंडीशन ऐसे कुछ होगा XL इक्वल टू XC आ जाएगा EL इक्वल टू EC होगा
अनफाई नेगेटिव कब होगा जी? When EMF drop across the capacitance, नीचे चला गया क्या? ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं, क्या दिख रहा है? So EMF drop across capacitance will be like this. Across inductor थोड़ा कम होगा, ऐसे कुछ होगा. So combining them we'll get something like this. ठीक है, so in this the phase is negative. Okay. So if you're given a LCR circuit and they might ask कि who is leading who, कितना phase difference है, so just drawing the phasor diagram we can tell. ठीक है. So many times question directly comes ऐसे, मतलब question में ये नहीं दिया रहेगा कि phi 0 है, but they'll give this equation and all. So ये दोनों जनरली कभी कभी कैंसिल हो जाते हैं, तो इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ता आपको. They'll ask करंट कितना है सर्किट से. So if EL equal to ER, EL equal to EC, so the both will get cancelled. The current will be E by R simply. ठीक है. फेजर डायग्राम बनेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा. और थोड़ा प्रैक्टिस किया तो फेजर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगा आपको. ठीक है, बट इनिशियली चाहिए थोड़ा सा. ठीक है, तो ये भी लिख लो जल्दी से, फटाक से लिख लो इसका. ठीक है, लिख लो सब ना. ठीक है, तो जस्ट एक मिनट रुक जाओ. कैमरा को थोड़ा बैटरी चेंज कर रहा है, और फिर लिख दिया होगा सबने. ठीक है, हो गया, फास्ट हो गया. दिख रहा है क्या? अभी दिख जाएगा. ठीक. सर्व समझ में आ गया, तक कोई डाउट इसमें? यस, रिया, आयुषी, अंशु. Yes, sir. ठीक, अच्छा. तो ये सब है इसी में, और क्या. ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर. चलो, एक दो चीज बता देते हैं, सिंपल चीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चलो ये देख देते हैं. So now these circuits can act as filters also. ठीक है, filter मतलब removing something which is unwanted.
So we can have these two types of filters. There is a capacitor, there is an inductor. Okay. Now, suppose in this capacitor, we pass high frequencies and we pass low frequencies also. Now, इसका meaning क्या है basically? Low frequency means omega is small, high frequency is omega is large. So I equal to I naught into omega t, sin omega t. So if omega is more, then we can say that it is high frequency source, and if omega is less, it is low frequency source. ठीक है? Suppose high and low are passing in both inductor and capacitor. So in the output, what will be the frequency that you have to say? ठीक है? तो क्या होगा frequency यहाँ पे? सर बताइए? सर वो हाई लो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? मतलब वो जो पास हो रहा है High frequency source, I equals to I naught into sin omega t. So we are passing many frequencies. ऐसा नहीं कि एक ही frequency है. Generally एक ही होता है. ठीक है? Yes, sir. So capacitance का reactance क्या होता है? Xc is equals to 1 by omega c. ठीक है? So if omega is less, that means अगर low frequency है, so for this capacitive reactance will be very high. है ना? So अगर capacitive reactance ज़्यादा Yes, है, so it will not allow it to pass. Pass नहीं करने देगा. है कि नहीं? Yes, रिया. तो वही है बस. तो low frequency को it will block, and only high frequency will be allowed. So this is how capacitor acts as a filter of low frequencies. ठीक है? तो इसको हम लोग हाई पास फिल्टर बोलते हैं. ठीक है? एंड फॉर दिस इंडक्टर इसमें क्या होगा? XL equal to omega L. So if omega is large, that means high frequency will have more inductive reactance. ठीक है? So it will not allow high frequencies to pass, only it will allow low frequency to pass. So इसको हम लोग लो पास फिल्टर बोलते हैं. ठीक है? So इससे हाई पास हो रहा है, हाई पास, and these are low pass. ठीक है? ऐसा है. तो क्या हाई पास फ्रीक्वेंसी, लो पास फ्रीक्वेंसी? ओके. अच्छा, तो एक छोटा चीज था और एक और चीज है, ये भी देख लेते हैं फिर. हमारा एसी सर्किट में पावर क्या होता है जी? ये हमको थोड़ा सा देखना है. ठीक है? सो व्हाट इज द पावर इन एसी सर्किट? So if we take at a particular instant, so the instantaneous power will be E into I. ठीक है? So E is the instantaneous EMF, current, I is the instantaneous current. ठीक है? But we know that both these values keep changing with time. So we have to take the average of this value, average power. So this will be integral of EI into dt by time period. If you take over the entire time period. ठीक है? So we can write E as E naught into sine of omega t plus phi, and I as I naught into sine of omega t dt divided by time period. तो इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा. तो सॉल्विंग दिस यू विल गेट बेसिकली E naught into I naught बाहर आ जाएगा, sin omega t plus 5 into sin omega t.
सो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? कर ही सकते हैं. So you'll get the average value of power as E naught I naught by 2 into cos phi. एक बार चेक करो, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है. इसको इंटीग्रेट करने से ही आता है क्या? थोड़ा देखो एक बार. Sine of omega t plus phi, we can expand it. Sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi. And this is cos omega t into sin omega t. Cos A, cos B. आ रहा है क्या वाले? ऐसा वंशु आ रहा है क्या? आ गया क्या? अरे आप लोग तो फास्ट होना चाहिए. Okay. Sin of omega t plus phi इसको एक्सपेंड कर दो बस. Sin A cos B plus cos A sin B. ठीक है. हो गया क्या? ये सोल्यूशन आ रहा है क्या? अरे भाई बहुत स्लो है आप लोग तो जी. इसको इंटीग्रेट करना है तो
साइन ए कॉस बी, इसको साइन टू थीटा रख सकते हैं, हाफ ऑफ साइन टू ओमेगा टी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ओमेगा टी क्या होगा, कॉस टू ओमेगा टी बाय टू ओमेगा जो भी है, कॉस जीरो वन, कॉस ऑफ टाइम पीरियड यही वन आ जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो, so ये जीरो हो गया। ठीक है, एंड कॉस फाई तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं, वन माइनस टू कॉस ओमेगा टी बाई टू लिख सकते हैं, तो उसको इंटीग्रेट कर दो, वन आएगा इसका मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यस सर। इसे तो इजी है आप लोगों के लिए, मैथ्स में तो इसे टफ करते होंगे, तो बहुत बेसिक है। तो बस हो गया। सो एवरेज पावर विल बी ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाइव, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस करोगे मेरे हिसाब से हाफ आएगा आंसर, तो ऐसे कुछ होगा। ठीक है, सो दिस cos phi is called power factor। ठीक है, so this same expression can be written as average power can be written as ERMS, दिख रहा है क्या, और नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देते हैं आपका, average power can be written as ERMS IRMS into cos phi, ऐसे लिख सकते हैं इसको, E नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, that means the total power is equals to apparent power into cos factor, power factor sorry, ये बहुत जरूरी है। So the actual power which is flowing through the circuit or released by the circuit is apparent power into power factor. So ERMS into IRMS power होना चाहिए, right? E into I power होना चाहिए, बट इसमें एक और फैक्टर आता है जो उसका बोलते हैं लोग पावर फैक्टर। ठीक है ना, cos फाई का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, सो ये सेम फाई जो हमने वहाँ पे लिया था, कहाँ गया, tan फाई में जो फाई आया था, सो दिस कैन बी जीरो ऑल्सो, तो पावर रिलीज बाय द सर्किट कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, वो कब होता है हमारा, किसी को याद है, ये सब है, when is कौन सा वैल्यू? which circuit power, no power is released, yes Riya, सर फिर से रिपीट कीजिए। in which circuit there is no release of power, power release नहीं होते, ये मैं पढ़ा था रिसेंटली, एलसी सर्किट में रिलीज नहीं होता, राइट, एलसी सर्किट पता है तो। ठीक है, एलसी सर्किट याद है, एलसी एलसी, तो इसमें फाई हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, आर इज जीरो, सो tan फाई विल बी इनफाइनाइट, फाई विल बी 90, cos फाई विल बी 1 और जीरो सॉरी, तो फॉर एलसी सर्किट देयर विल बी नो पावर रिलीज, इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज वॉटलेस करंट, एंड फाई जब जीरो होगा, फाई जीरो कब होगा, when XL will be equal to XR, XL will be equal to XC। ठीक है, तो उस केस में पावर इक्वल टू ERMS इंटू IRMS। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कब पावर कितना है, जीरो है, वन है ना, तो उसको थोड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, सो ठीक है, ये लिखने के पहले एक फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद लिखिएगा, तो चैप्टर का पूरा कंक्लूजन बोल सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, सो आई राइट सम इक्वेशंस, आपको बताने कि कौन सा सही है कौन सा गलत है।
पता है 4 इक्वेशंस है E equal to I into Z, E E0 equals to I0 into Z, E RMS equal to IRS into Z, E average equals to I average into Z. तो इसमें कौन सा इक्वेशन सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। बी सही है। कौन सा सही है नहीं बी मल्टीपल बी ऑप्शन है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है सारा भी सही हो सकता है ठीक है बताइए अच्छा कौन सा गलत है वो बता दो सर ये रिलेशन किसके ऊपर मतलब कौन सा सर्किट पर बोल रहे हैं? कोई भी एसी सर्किट है कोई भी एल आर एल सी आर जो भी लेना ले लो सर ए वाला गलत है। ये वाला गलत है कैसे इक्वल्स टू आई आर होता। आई आर क्यों होगा ये ई आर थोड़ी है ई आर होता तो आई आर होता अच्छा बताइए सर पहला वाला तो एलआर सर्किट में होता है, ट्रू होता है। ये जनरल है पूरा जिसे ओम्स लॉ आता है हमेशा ट्रू रहता है तो यस सर। इसमें से कौन सा हमेशा गलत होगा वो आपको बताना है आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या लिखा है मैंने आर एम एस ई ई नॉट ये मेरा इंस्टेंटेनियस ई एम एफ इंस्टेंटेनियस करंट है सर तो फिर डी होगा। ये गलत है यस सर। नहीं डी तो ভালো আছে यस रिया ऐसी बताइए ठीक कुछ तो बताइए यस ऐसी बताइए कौन सा गलत है आपके हिसाब से अरे इधर उधर क्यों देख रहे हैं गलत है तो गलत है ना आपका भी आंसर गलत हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं Sir, first one is wrong. वाई Sir, we substitute the like values. या It वेरी looks गुड सो ये गलत है तो ये इक्वेशन ये इक्वेट नहीं होगा एंड ये तीनों इक्वल होगा ठीक है सो क्या ई एन आई दे आर नॉट इन फेज करंट हमारा अलग फेज में होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी ई विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव राइट तो ये इक्वल नहीं होगा कभी इंस्टेंटेनियसली कभी दोनों इक्वल नहीं होंगे बट पीक वैल्यूज इक्वल होगा ई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड अगर ये सही है तो ये दोनों भी सही होना चाहिए इसको रूट टू से डिवाइड कर दो तो ये भी सही हो गया देन एवरेज भी कर सकते हो 2/π से डिवाइड कर दो ठीक है सर डी वाला कैसा मतलब सही हो रहा है? इसी को डिवाइड कर दो ना 2/π से मल्टीप्लाई कर दो आई एवरेज विल बी आई नॉट इंटू 2/π ई एवरेज विल बी ई नॉट इंटू 2/π हाँ ठीक है। ऐसा ठीक है तो ऐसा मिस्टेक करेंगे तो चलेगा थोड़ा टॉलरेबल है ठीक है तो इसको लिख लो फटाक से
लिख लिया सब ना? यस सर। ओके डन, नाइस, ठीक है। एक्चुअली टाइम हो गया, बुरा लग रहा है हमको। ठीक है, so let's remove this, इसको मैं रब कर देता हूँ। So have you tried all the problems जो क्लास पर प्रॉब्लम दिया था आपको? यस, कर लिया पूरा? कितना हुआ? Sir, हाँ बोले। sir, what was that? You wrote AP? एपी नहीं, एवी, एवरेज एवरेज। अच्छा उधर, यहाँ यहाँ पे एपी मीन्स अपेरेंट पावर। अपेरेंट इतना पावर होना चाहिए ई आर एम एस इंटू आर एम एस, बट एक्चुअल में उतना नहीं है, कॉस फाई से मल्टीप्लाई हो रहा है वो। Sir, and in that filters, you were saying that will not allow or that low frequencies will get locked. हाँ Sir, वो locked कैसे हो रहा था? क्या क्या? Sir, मतलब you said ना that they'll not pass. हाँ, So why will they not pass? बिकॉज उसका इम्पिडेंस ज़्यादा होगा ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। Hmm. इफ ओमेगा इज वेरी लेस, दिस विल बी वेरी डायरेक्ट, Yes, sir. तो ब्लॉक कर देगा। सपोज नॉर्मल सर्किट है आपका, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, सपोज इनफाइनाइट नहीं बट वेरी वेरी है, तो करंट कितना होगा? वेरी लेस, ऑलमोस्ट जीरो। Very less. Hmm. तो सेम यहाँ पे होगा। सर हाँ बोलिए जी। सर फिल्टर सर्किट्स में आप मतलब हम वो कंपोनेंट्स मतलब कैपेसिटर और या इंडक्टर हम वो मतलब पैरेलल कनेक्शन में क्यों लगाते पैरेलल कहाँ है? हैं? आई मीन उसका मतलब एक टर्मिनल के अंदर मतलब एक पाथ में आपका वो कैपेसिटर या इंडक्टर लगाता है और एक में हम पैरेलल एक रेजिस्टर लगाते हैं, मतलब वैसे हम सर्किट को क्यों बनाते हैं? कहाँ पे बस? सी अगर कैपेसिटर हमारा है और इसमें अगर हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पास करेगा, तो बाहर सिर्फ हमारा हाई फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। अब कैसे भी लगा दो इसको, सीरीज में होगा तो सीरीज में, पैरेलल में भी लगा सकते हैं, रजिस्टर लगा दो एक तो। रजिस्टर लगाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं, पूरा का पूरा यहाँ से पास हो जाएगा, तो इसमें हाई प्लस लो दोनों आ जाएगा, ठीक है। सीरीज में लगाएंगे तो फिर हाई फ्रीक्वेंसी पास होगा बस, लो फ्रीक्वेंसी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है तो यस सर। हो गया, बस यही है। और बताइए जी, और कुछ हो? So how many problems you have tried? Classwork problems? कितना हो गया? 10, 11? यस अविंशु, आयुषी, रिया। यस अविंशु, कोटो प्रॉब्लम। ये कुछ तो बोलिए, किया कि नहीं? एक क्वेश्चन किया है, एक यस। सर वो लास्ट वाला तो लास्ट मतलब आज मैं वो वेडनेसडे को डाल दिया था, आज मैंने बोला था दोपहर को कि थोड़ा कर लेना उसको क्लास के पहले। हाँ सर वो मैंने मतलब उसका 5 क्वेश्चन है। आज ही हुआ क्या? बाकी यस लोगों सर। का? यस आयुषी, रिया। Sir, 6 problems. 6 हो गया, ठीक है। रिया आपका? 5. 5?
ठीक है, तो बाकी भी कर लो फिर। कुछ डिस्कस करना है पहले पास प्रॉब्लम में? इजी है। फर्स्ट थ्री तो कुछ है नहीं, थर्ड वाला थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसे पूछे कि कौन सा सर्किट पॉसिबल हो सकता है, आपको दिया होगा आई की ई था ना, ई इक्वल्स टू समथिंग इनटू साइन ऑफ 300t माइनस पाई बाय 4, राइट? ऐसे कुछ दिया होता, शायद 4 नहीं था, कुछ था यहाँ पे 5। Five. तो इसमें बेसिक वैल्यू पूछा है आपको, आरएमएस I वैल्यू क्या पूछा है? so Sir, the that question was I close. चाहे दिया है क्या? ठीक है, क्या क्या पूछा है इसमें? ABCD आई थिंक ABC तो आप कर लेंगे जो भी है। डी पार्ट ने पूछा विच टाइप ऑफ सर्किट इज पॉसिबल, राइट? तो कौन सा सर्किट पॉसिबल है इसके लिए? तो क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ सकते हैं क्या बिफोर आई एंड? एक डिस्कस कर लेते हैं, वो टाइम थोड़ा कम ही है। इसमें ई का कुछ वैल्यू दिया है क्या आपको? एनीथिंग गिवन? No, sir. नॉट गिवन? अरे ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, if you current is circuit is like this, identify all possible circuits, ठीक है? ठीक है, एक्चुअली ई भी देते हैं तो थोड़ा थोड़ा और क्लैरिटी रहता है। सो ई को अगर हम लोग ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी लेते हैं 300t, ठीक है? अभी बता सकते हैं। सो इन दिस ईएमएफ इज, अगर आप बना भी देंगे तो ई अगर ऐसा है हमारा, दिस ई, तो करंट कैसे होगा? पाई बाय 4 ऐसे कुछ होगा, सीधे करंट, राइट? अगर ये ऐसा है तो 300t माइनस पाई बाय 4, तो करंट इज बिहाइंड ईएमएफ, है ना? तो ऐसे कौन से सर्किट में पॉसिबल है? अगर आप इसको थोड़ा घुमा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। करंट ऐसा है एंड ई ऐसा है, so in which circuit such a combination is possible? इसमें ईएमएफ इज लीडिंग करंट बाय सम एंगल फाई, तो एलआर सर्किट में हो सकता है ऐसा, राइट? एलआर में होगा, ठीक है? एंड एलसीआर में भी हो सकता है, इन विच ईएल इज ग्रेटर देन ईआर, ईएल इज ग्रेटर देन ईसी, उस केस में भी ऐसे कुछ हो सकता है, राइट? ये सब इशू क्लियर अच्छा? यस ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। जैसे आप बाकी अटेंड कर लो, मेरे हिसाब से हो जाएगा जल्दी जल्दी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 से यू शुड बेटर कि आप फेजर डायग्राम यूज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है? ऐसा है, ठीक है? तो अच्छा, एक Sir, फाइनल चीज, question. हाँ बोलिए क्वेश्चन। Sir, in question number 4, हाँ, sir, virtual current in the circuit means. क्वेश्चन नंबर 4, ऑल्सो फाइंड द वर्चुअल करंट इन द सर्किट। ठीक है, वर्चुअल करंट वही आरएमएस वैल्यू निकाल दो उसका, ठीक है? Okay, sir. ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू निकाल दो, बस उतना ही है उसमें।
कभी कभी थोड़ा लैंग्वेज टफ कर देता है। ओके, हाँ एक चीज़ बस फाइनली बताना था हमको, जो आई फीलिंग कि थोड़ा हेल्पफुल रहेगा सब लोग के लिए। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो ना आपका जो भी जेई मेंस का एग्ज़ाम होगा या नीट, नीट तो काफ़ी टाइम है। सो अगर आप जेई मेंस का एग्ज़ाम देखते हैं, इफ़ यू टेक इट एज फरवरी में हो जाएगा, मोस्टली फरवरी में होगा एज फार एज आईटी प्रोफेसर से कल बात किया मैंने, सो दे आल्सो टोल्ड कि मोस्टली फरवरी में जेई मेंस का एग्ज़ाम होगा। अगर जनवरी में नहीं होता है तो मोस्टली जनवरी में नहीं होगा। ठीक है, सो अभी क्या जो मैं प्रॉब्लम्स वगैरह कर रहा हूँ उधर एडवांस लेवल पर है। ठीक है, एडवांस से कुछ नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है, बट मोस्टली द प्रिपरेशन इज जे एडवांस के लेवल का पूरा हो रहा है। ठीक है, ना इससे क्या है कि आपको थोड़ा क्या कहते हैं, टिल द टाइम यू सॉल्व जे एडवांस लेवल क्वेश्चन तब को आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ क्लास पर प्रॉब्लम्स होता है। अच्छे वगैरह अगर अच्छे से करो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, बट अगर किसी को बहुत डर, और ठीक है डर नहीं बोल सकते, समवन इज फीलिंग दैट वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इजी क्वेश्चंस होने का कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कोई भी टॉपिक में, ठीक है, सो यू कैन डू दिस बुक, बहुत अच्छा बुक है, मैं पहले ही बोला था एक बार। सो इनसाइड योर फिंगर टिप्स। ठीक है, सो ये बुक सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए अच्छा रहेगा, अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सो यू कैन डू दिस बुक। सो इन दिस पर चैप्टर देर आर अराउंड 100 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड असर्शन रीजन वगैरह भी रहता है, बट अगर सिर्फ एमसीक्यू आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन नीट एंड मेंस। ठीक है, सो हम बता रहा हूँ अभी, आपको क्या टाइम नहीं होगा ये सब करने के लिए, तो ये बुक आप कब कर सकते हो, बहुत फ्री बैठे हैं या फिर फ्री नहीं, मतलब कोई टॉपिक अगर रिवाइज करना है आपको, या फिर जस्ट यू वांट टू रिवाइज द टॉपिक, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू थ्योरी आप इसके 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन करने में भी 1.5 और 2 आवर्स उतना लगेगा। ठीक है, एंड मेनी आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो फटाफट हो जाएगा, एंड सम आर लिटिल टफ, एक दो क्वेश्चन 25 में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू आर एबल टू डू दिस बुक, अगर कुछ नहीं कर पा रहे एचसीओ में भी टाइम नहीं मिल रहा है, फिर नहीं कर पा रहा है, so एटलीस्ट ये बुक अगर आप थरोली करते हैं, ठीक है, स्पेशली जो टॉपिक्स अभी करेंगे, अभी तो एसी एम आई हो गया, देन ऑप्टिक्स आएगा, देन मॉडर्न फिजिक्स भी ऑप्टिक्स, इसमें कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है, इजी टॉपिक्स है बट थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सो आप ये बुक कर सकते हैं अगर आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस अगर एचसीओ में भी आपसे हो रहा है तो करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखेंगे कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी लग सकता है, क्या है सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सो अगर सिर्फ यू वांट कॉन्फिडेंस लिटिल बिट तो ये बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो रिया में भी यू कैन डू दिस, बाकी लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे एचसीआर में हो रहा है तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये बस बस देख लेना क्या क्या है क्वेश्चन, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लेंगे, वैसे टाइप का कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सो ये बुक है क्या, ट्राई कर सकते हैं इसका। ठीक है, बस यही है, एक सजेशन था मेरे साइड से। ओके, अच्छा आपने एचसीआर में कर लिया क्या भाई ईएमआई का? नहीं हुआ, कब तक करेंगे? हाँ, संडे तक कर लो। ठीक है, क्या सबका चेहरा मुरझा गया अभी? हाँ? देखो वेडनेसडे को मैंने क्लास नहीं लिया, तब तब कुछ कर सकते थे। ठीक है, संडे को कर लो, टेस्ट नहीं होगा इस बार, तब संडे को कर सकते हो। ठीक है, संडे कब तक करो, 2-3 बजे तक कर लो।
ठीक है, तो बस इतना ही है आज की क्लास में। सो ये मैं का HCR में कर लो, बस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे मोस्टली। तो ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम्स बाय टुमारो। अच्छा, कल सुबह ही क्लास है ना? कल सुबह तक कर लो जी 11 क्वेश्चन। सुबह डिस्कस कर लेंगे, इसी खत्म हो जाएगा। उसका HCR में कर लेना, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स में चलेंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स भी बड़ा मस्त चैप्टर है, इंटेलिजेंट बनेगा आप लोग। ठीक है, इतना ही था। और कुछ पूछना किसी को? यू वांट टू आस्क समथिंग, टेल समथिंग? किसी नहीं? ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, विल मीट टुमारो मॉर्निंग। Thank you, sir. Yes, थैंक sir. यू एवरीवन।